ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ Yes. ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੇ Yes, Lord. ਉਹ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ Amen. Yes. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ Hallelujah. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਦਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀ Hallelujah. ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਮੰਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ Yes. ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਮੀਨ ਔਰ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਖੁਦਾ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖ ਯਹੋਵਾ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਰੀਫ ਥੈਂਕ ਔਰ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਵਿਪਰਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਸ਼ਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਮੀਨ ਖੁਦਾ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੱਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖੁਦਾ ਆਮੀਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਪੀਵਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਔਰ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰਵਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾਤ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਪਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਜੋ ਭਾਈ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਜੋ ਲਾਈਵ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਪਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਪਏ ਔਰ ਖੁਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਇਆ ਪਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਪਏ ਔਰ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਝਰੋਖੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਪਏ ਤਾਰੀਫ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਪਏ ਆਮੀਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਡੋਲੀ ਨਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਆਖਦਾ ਤੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਪਏ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਸ ਭਾਈ ਨੇ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਖੁਦਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਂ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਪਿਆਰੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਣ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਏ ਔਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਯੈਸ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰਦੀ ਰਹਿਮ ਕਰੀ ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੇ ਆਮੀਨ ਯੈਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੁਆ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਆਮੀਨ ਥੈਂਕ यू हालेलुया हालेलुया सो कितने लोग खुश है प्रभु के भवन में आमीन आमीन सचमुच एक प्रभु ने नया दिन दिया है एक नई शाम दी है हमको फिर से इकट्ठा होने के लिए हम थके मांदों को प्रभु ने फिर से ताकत देने के लिए ये समा दिया है हालेलुया न दुनिया में तो हमें दुख होता है क्लेश होता है लेकिन प्रभु के भवन में आके हमको ऐसा लगता है कि हमारा कोई सहारा है हालेलुया नहीं तो हम टूट चुके होते हैं हम थक चुके होते हैं लेकिन प्रभु के भवन में जब आते हैं उसके गीतों को गाते हैं जब उसमें आनंद मनाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा एक रास्ता है हमारा एक चरवाहा है जो हमें शांति दे सकता है हालेलुया तो आइए उस प्रभु की महिमा के लिए उसकी आराधना के लिए उसकी संगति के लिए हम वचन में जाते हैं और वचन निकालते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 15वां और 16वां वाक्य सभी लोग निकाल लीजिए द बुक ऑफ लूक चैप्टर नंबर 3 वर्स 15 और 16 सभी लोग निकाल लीजिए नए नियम की ये अंजील है लूका की अंजील मत्ती आता है फिर मरकस आता है और उसके बाद लूका आता है और लूका का 3 अध्याय और उसका 15वां वाक्य और 16वां वाक्य जब लोग आस लगाए हुए थे हाँ जी और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे हाँ जी कि क्या यही मसीह तो नहीं है यहाँ पर एक विचार हो रहा है इजराइलियों के द्वारा जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले इर्द गिर्द खड़े हुए हैं वो कुछ विचार कर रहे हैं क्योंकि यूहन्ना की ये जो बातें करता था कि मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है और ऐसी बातें कभी कोई नहीं करता था जिसको सुनकर उनको ऐसा लगा कि ये हमारा मन फिराने वाला एक ऐसा बंदा आया है क्या यही मसीह तो नहीं जी तो यूहन्ना ने उन सब से कहा देखो यूहन्ना के विषय में बात चल रही है लेकिन यूहन्ना ने कुछ कह दिया यूहन्ना ने क्या कहा
मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मैं क्या करता हूँ? तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है, परंतु वह आने वाला है। हालेलुया। अब उसके आने वाले के बारे में जानेंगे हम, और इस पानी के बारे में जानेंगे, और जो आगे जो ये बात करेगा, हम आज इन चीजों के विषय में बात करेंगे। हाँ जी, जो आने वाला है, जो मुझसे शक्तिमान है। हालेलुया। उसको सोच रहे हैं ये मसीहा है, लेकिन वो क्या कह रहा है? जो मुझके मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिमान है। हाँ जी, मैं तो इस योग्य भी नहीं, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूते का बंद खोल सकूं, मैं उसके जूते का बंद भी नहीं खोल सकता। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। आज हमने इसके विषय में चर्चा करनी है। जो हमारा टॉपिक होगा इसी के विषय में होगा, पानी, आग और पवित्र आत्मा की बात। या इसको दूसरे शब्दों में कहो, प्रभु जो आग है उससे मुलाकात बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपने कंफ्यूज नहीं होना पानी का सुन के, या पवित्र आत्मा का सुन के, या फिर उस आग का सुन के। ये सभी बातें एक की तरफ जाएंगी। ये आप जैसे धीरे धीरे वचन को सुनोगे ना, ये सभी बातें एक की तरफ इशारा करेंगी। तो इसलिए आपने इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि यूहन्ना पानी की बात कर रहा था और उसके बाद जो आने वाला है वो आग और पवित्र आत्मा की बात करेगा, और हमने किसकी तरफ जाना है। ये तो एक रहस्य की बात है, पानी, आग और पवित्र आत्मा, और इसके अलावा और भी रहस्य की बातें हैं जो इस वचन में है। लेकिन सबसे जो बड़ा रहस्य है कि वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह जो भक्ति का वेद है, जो गंभीर है, वो दे लेकर इस शरीर में प्रकट हुआ, इस धरती पर प्रकट हुआ। यही सबसे बड़ा वेद है बाइबल का, और जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह खुल गया उसके ऊपर पूरी बाइबल खुल जाती है, क्योंकि छुटकारा प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। हालेलुया। तो जो आज हम बात करेंगे पानी, आग और पवित्र आत्मा के विषय में बात करेंगे, और साथ में इसको अगर देखेंगे तो प्रभु जो आग है उससे मुलाकात होनी हमारी जरूरी है। हम इसको धीरे धीरे सीखते जाएंगे और फिर से वापस आते हैं। यूहन्ना क्या कह रहा है? यूहन्ना के विषय में लोग कह रहे हैं क्या यही मसीह तो नहीं? लेकिन आगे यूहन्ना कह रहा है कि मैं नहीं हूं, परंतु मेरे बाद आएगा, वह क्या करेगा? मैं तो पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं। यूहन्ना का क्या काम था? मन फिराओ का बपतिस्मा। उसके लिए यही भविष्यवाणी हुई थी, तू जाना है और तूने उस आने वाले के लिए मार्ग तैयार करना है, टेढ़े मार्गों को सीधा करना है। जब वो जंगल से बाहर निकलता है तो यशाया की बात कहता है, जैसे यशाया ने कहा कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनाई दिया कि मार्गों को सीधा करो जो टेढ़े हैं, और मन फिराओ और बपतिस्मा लो। और यूहन्ना की यही बात थी कि पानी से बपतिस्मा। और उसके सामने कुछ लोग आ गए और उसको बताने लगे कि तू मसीह तो नहीं। आपस में विचार कर रहे हैं, लेकिन यूहन्ना क्या कह रहा है? मेरे बाद आने वाला है, वो क्या करेगा? आग से और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। हम थोड़ा सा यूहन्ना के विषय में जानेंगे, क्योंकि ये बाइबल स्टडी है और हम सब लोग सीखने आए हैं। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है, ये जो है यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा है, और इसकी माता का नाम एलिशबा है, और इसके पिता का नाम जकरिया है। और इसको जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, इसके विषय में अब जो जिसकी बात कर रहा है, मेरे बाद आने वाला है, वो इसकी एक गवाही देता है। कौन देता है? यीशु मसीह, जो उसके बाद आने वाला है, जो आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। जबकि यीशु मसीह ने कोई बपतिस्मा दिया ही नहीं। ऐसा ही ना बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया ही नहीं। लेकिन जब हम यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं तो वो यूहन्ना की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। आग और पवित्र आत्मा से हम जन्म लेते हैं। वो आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो चीज समझ आएगी। क्या है? जो यीशु मसीह है वो यूहन्ना के विषय में ये गवाही दे रहा है कि जितने भी माता के पेट से इस दुनिया में आए हैं, चाहे वो मूसा होगा, चाहे वो यिर्मयाह होगा, चाहे यशाया होगा, चाहे दाऊद होगा, उससे बड़ा कौन है? ये यूहन्ना है, सबसे बड़ा। हालेलुया। आपको इन चीजों को सीखना है। अगर हम यूहन्ना की बात पढ़ रहे हैं तो इसकी हिस्ट्री हमें मालूम होनी चाहिए
कि यीशु मसीह ने इसके बारे में क्या कहा, इसने उस यीशु मसीह के बारे में क्या कहा, और इसके जो कहा उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि जितने माता के पेट से आए हैं उससे सबसे बड़ा तू है, जबकि यीशु मसीह खुद ही माता के पेट से आया था। ऐसा ही है ना। लेकिन यीशु मसीह ने उसको बोला कि तू है। क्यों? क्योंकि मूसा ने क्या किया, प्रभु के कामों को किया। दाऊद ने क्या किया, प्रभु के कामों को किया। जितने भी नबी ले लीजिए आप पुराने नियम के, उन्होंने क्या किया, प्रभु के कामों को दिखाया, चमत्कारों को दिखाया, प्रभु की बातें की। लेकिन ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जिसने कहा वो रहा जगत का मेमना। ये क्या कर रहा है, ये काम नहीं दिखा रहा प्रभु की, ये प्रभु को ही दिखा रहा। हालेलुया। और जो काम दिखाए थे प्रभु ने, उनको बड़ा नहीं बोला, उनका काम था काम करने, उन्होंने काम करके चले गए। जितनी इज्जत यूहन्ना रखता है उतनी इज्जत वो भी रखते हैं, समझ रहे हो, वो भी उतनी ही इज्जत के हकदार हैं। लेकिन प्रभु ने उसको एक अलग चुनावट कर दी उसको ये बोल के कि जितने माता के गर्भ से आए हैं दुनिया में, उस सबसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। क्योंकि एक तो वो मार्ग को सीधा करने आया, और सबसे बड़ी बात उसने प्रभु को लोगों के सामने दिखा दिया कि ये जगत का मेमना है। हालेलुया। ये आग से बपतिस्मा देगा, ये पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, इसके मैं पांव के बंधन खोलने के लायक भी नहीं हूँ। हालेलुया। तो ये है यूहन्ना की बातें जो उसने की। लेकिन आज हमने सीखनी है पानी, आग और पवित्र आत्मा की बात, और साथ में सीखना है कि प्रभु जो आग है उससे हमारी मुलाकात होनी बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। जब तक हमारी प्रभु से मुलाकात नहीं होती तो हमारा यहाँ पर बैठना खाली हो जाएगा। जब बपतिस्मा लेते हैं, अगर वहां पर प्रभु से हमारी मुलाकात नहीं होती तो वहां पर खाली हो जाएगा। प्रभु से आपकी मुलाकात जरूरी है। पहले नबियों से प्रभु कभी कभार मिलता था आके, मूसा को उसने दर्शन दिया, मूसा से बातें करता था, मूसा आगे जाके बातें करता था, वो साथ में हारून जाता था उसके। और वैसे ही आगे कौन आया, दाऊद का बेटा सुलेमान आया, प्रभु ने उसको पूरी बाइबल में 2 बार दर्शन दिए। और ऐसे ही प्रभु लोगों से बातचीत करता था। लेकिन आज प्रभु लोगों से हर रोज मिलना चाहता है। हालेलुया। वो हम पर निर्भर करता है कि हम रोज मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते। लेकिन प्रभु हमसे रोज मिलना चाहता है, क्योंकि वो आग है, वो पानी भी है, और वो पवित्र आत्मा भी है। हालेलुया। आप जैसे भी हालातों में होते हो ना, प्रभु आपके साथ वैसा बन के आ जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि पानी, आग और पवित्र आत्मा के विषय में आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप में संकट नहीं आना चाहिए कि ये बात कैसे हो गई। हम पानी के महत्ता दें या आग को दें या पवित्र आत्मा को दें, आपने महत्ता देनी है प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि वो संग्रह है इन चीजों का। जैसे आप हालातों में होते हो, अगर आप एक बच्चे हो तो प्रभु आपकी माता बन के आ जाएगा, आपका पिता बन के आ जाएगा। अगर आप एक दोस्तों वाले विचारों वाले हो तो प्रभु आपके साथ दोस्तों वाले विचारों में आ जाएगा, क्योंकि उसने आपके साथ एक रिश्ता कायम किया हुआ है। और उस रिश्ते को आपने किस हद तक लेके जाना है वो आप पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रभु ने आपको सब कुछ दे दिया अपना। उस पिता ने अपना इकलौता बेटा दे दिया, और उस इकलौते बेटे ने आपको अपने लिए निशावर कर दिया। अब वो कहता है जितना मुझ में से खा सकते हो खा लो। हालेलुया। उसमें कोई कीड़ा नहीं लगेगा जैसे उस मन्ने में लगता था। ये वो मन्ना नहीं है जो बाप दादों ने खाया मर गए। ये वो मन्ना है जिसको जितने मर्जी लोग खाएं, ये कभी भी खराब नहीं होगा, इसमें कभी बास नहीं आएगी, इसमें सुगंध ही सुगंध आएगी। हालेलुया। और ये बातचीत है प्रभु की। तो प्रभु हमारे साथ उन्हीं हालातों में वैसा बन जाता है जैसे वो हम चाहते हैं। प्रभु मुझे माता की कमी है या पिता की कमी है, तो प्रभु आकर बन जाता है। उसने क्या कहा वचन में, माता भूल सकते दूध पिलाना, मैं नहीं भूलता। हालेलुया। माता पिता छोड़ जाएंगे लेकिन मैं तुम्हें नाथ नहीं छोड़ूंगा, है ना। उसने हमको दोस्त कहा, उसने हमको अपनी दुल्हन कहा, उसने हमारे साथ ऐसा रिश्ता रख लिया जैसा वो चाहता था। और वो उसने हम पर छोड़ दिया कि तुम मुझको सिर्फ पिता ही मानते हो, या तुम मुझको पुत्र में देखते हो, या तुम मुझे पुत्र आत्मा समझते हो। वो तो पूरी कायनात को रचने वाला है। हालेलुया। वो एक बंधन में बंधा हुआ परमेश्वर नहीं है कि हम उसको सिर्फ एक ही दायरे में बांध कर रख लें कि तू बस इतने ही कार्य कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, वो सब कुछ कर सकता है, जो आप सोच भी नहीं सकते वो भी कर सकता है।
वचन में लिखा है ना, जहाँ वो बीजता नहीं है वहां से काटेगा। हम सोचते हैं वहां नहीं बीजना है, वहां पर भूमि उपजाऊ नहीं है, लेकिन प्रभु वहां से भी काटने की ताकत रखता है। वो हमारी सीमाओं से परे सोचता है, वो हमारी सोचों से परे सोचता है। इसीलिए तो पराक्रमी परमेश्वर कहा जाता है, अनादि काल का पिता कहा जाता है। हालेलुया। तो आइए हम एक दो वाक्य देखते हैं, और जो हमारा वचन है इसकी तरफ ही रहेंगे। पानी, आग और पवित्र आत्मा की बातचीत, और प्रभु जो आग है उससे मुलाकात जरूरी है। तो हम निकालते हैं निर्गमन 2 उसका 10। निर्गमन और ये बाइबल की शायद दूसरी ही किताब है, उत्पत्ति उसके बाद निर्गमन आ जाता है। हाँ जी, निर्गमन उसका 2 उसके 10। और स्टोरी को सभी जानते ही हैं, और इस स्टोरी की तरफ इसलिए लेके आया हूं क्योंकि इसके साथ पानी और आग का एक रहस्य है, पानी और आग की एक बातचीत है। हाँ जी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई। किसको पास ले गई? फिरौन की बेटी के पास वो ले गई। ये बातचीत चल रही है मूसा की। आपको मैं ऐसे बता दूंगा क्योंकि पढ़ेंगे तो ज्यादा लंबा चैप्टर हमारा हो जाएगा, और आप इसको अच्छे तरीके से जानते भी हो। लेकिन हम बातचीत कर रहे हैं पानी, आग और पवित्र आत्मा की बातचीत। और प्रभु जो आग है उससे हमारी मुलाकात जरूरी है। ये नहीं कि एक बार मुलाकात होगी दोबारा नहीं होगी। वो दोबारा भी मुलाकात करना चाहता है, वो बार बार मुलाकात करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा प्रेमी भी है, ये भी उसका रिश्ता है। जैसे एक दुनियावी होता है रिश्ता, उसके आप जानते हो कि उसके दरमियान हम क्या करते हैं। चाहे माता पिता का रिश्ता हो जाए, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, तो हम किस हद तक चले जाते हैं अपना प्यार निछावर करने के लिए, प्यार बताने के लिए कि माता मुझे तुझसे कितना प्रेम है, मैं तेरे लिए कितना कुछ कर सकता हूँ। और ना वैसे रिश्ते के लिए कोई प्रभु है, वो प्रभु भी हमारा प्रेमी है, हम उसकी दुल्हन है, और वो हमसे मिलना चाहता है। हालेलुया। और उसका मिलना दुनियावी नहीं है, उसका मिलना तो आध्यात्मिक है, आत्मिक है। और वो जो भी अपनी दुल्हन से मिलता है तो उसको आत्मा की उन्नति करके जाता है, और साथ में शारीरिक बातें बताकर जाता है कि तुमने अपने आप को इस संसार से अलग कैसे रखना है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारी चिंता करता है, वो हमारा शुभ चिंतक है। हालेलुया। और वो हाँ करता है, तैयारी देता है कि तुमने मेरे साथ जाने के लिए मेरे लिए क्या जरूरी है। सबसे बड़ी बात विश्वास जरूरी है उसका जाने के लिए। और उसके बाद भाईचारे के प्रति कितना कुछ लिखा हुआ है, प्रेम, धीरज, संयम, भाईचारे की प्रीति। और फिर जाकर प्रेम आता, उसके बाद कोने का पत्थर जो मसीह है वो जब आता है तब हम संपूर्णता में जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी। ये बात समझ आपको। जो बात करें पानी, आग और पवित्र आत्मा के विषय में, और जो प्रभु हमारा शुभ चिंतक है, हमारी चिंता करता है। वो मूसा को मरने के लिए छोड़ सकता था, लेकिन उसने उसकी चिंता की, और चिंता के साथ उसने क्या किया, जो पढ़ रहे हैं, मूसा जब बालक ही था तो उसको पानी में छोड़ दिया जाता है। और आपको इस स्टोरी के बारे में मालूम होना चाहिए। आप बाइबल में काफी देर से हो, और ये ना हो कि अगर आपको कोई मूसा के बारे में पूछे तो आपको उसका हिस्ट्री ही ना मालूम हो, या यूहन्ना बपतिस्मा देने के बारे में पूछे और आपको पता ही ना हो कि ऐसे नाम का बंदा भी कोई बाइबल में है। समझ रहे हो? क्योंकि फिर हमारा स्कूल जाना मतलब चर्च में जाने का काम खत्म हो जाएगा अगर हमको अपना इतिहास ही नहीं मालूम होगा। ये भी हमारा एक इतिहास है जो हमें विश्वास बढ़ाता है हमारा। और मूसा का जो ये समय है, इस दरमियान बच्चों को मारा जा रहा था, और मूसा का मिस्र में जाना एक कोइंसिडेंस था। उसके बाद उसका 40 साल यहाँ रहना, 40 साल मिघान में रहना, वो सब प्रभु ही उसके लिए तैयारी कर रहा था। उसके लिए अलग अलग बातें होंगी, बड़ा होकर उसने सूखा होगा, ये ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। लेकिन जब 40-80 साल के बाद प्रभु से मुलाकात होती है तो प्रभु बताता है कि मैंने तेरे लिए क्या सोचा हुआ है। ठीक है जी। तो क्या होता है, यहाँ पर बच्चों को मारा जाता है। एक तो यहाँ पर बच्चों को मारा जाता है, आपको मालूम होना चाहिए बच्चों को क्यों मारा जाता है। और एक बार यीशु मसीह के वक्त मारा गया था बच्चों को, और आपको वो भी मालूम होना चाहिए कि उस वक्त क्यों मारा गया। दोनों के कारण अलग हैं, दोनों को कारण एक साथ नहीं है।
यहाँ पर ये कारण है कि वहां पर इजरायली बढ़ रहे थे, इसलिए जिसकी वजह से उस समय के फिरौन को चिंता जताई कि ये जब बढ़ जाएंगे तो ये हम पर हुक्मरानी करेंगे। बिल्कुल तो उसकी चिंता का विषय ये था कि इन बच्चों को मारा जाए, इब्रियों के लड़कों को मारा जाए। और खुशकिस्मती से ये बच्चा बच जाता है, और ये बच जाता है तो प्रभु उसको छोटा खुदा भी कहता है। ऐसा ही है। तो जब यीशु मसीह के वक्त बच्चों को मारा गया, तब उस समय के राजा हेरोदेस को ये पता लगा कि उसको बताया गया मजूसी के द्वारा कि इस नगर में राजा पैदा हुआ है। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, पता होगी, लेकिन अभी आपका रिवाइज का समय है, उस सिलेबस को फिर से याद करने का समय है, जो प्रभु ने आपको काफी साल पहले बताया था। तो इस वक्त जो बच्चों को मारा गया, हमने जान लिया है कि किस वजह से मारा गया था। और जब मूसा की समय आता है, मूसा 3 महीने तक अपनी माता के पास ही रहता है। उसकी माता ने उसको कैसे संभाला ये प्रभु ही जानता है, लेकिन उसने 3 महीने संभाला। और जब 3 महीने संभाला तो उसने देखा कि मैं बच्चे को और छुपा नहीं सकती, तो उसने क्या किया, एक टोकरी बनाई और उस टोकरी में अपने बच्चे को रख दिया और नील नदी में छोड़ दिया। और जब नील नदी में जाता है तो नील नदी में उसका पता नहीं मूसा का नाम पहले मूसा रखा भी था कि नहीं रखा था, क्योंकि वो पहले की बात नहीं है कि उसकी माता ने उसका नाम मूसा रखा, ऐसा नहीं है। नाम किसने रखा था? फिरौन की बेटी ने, क्योंकि उसको जल में से मिला था। वचन ऐसे कहता ना, जब बच्चा उसके पास जाता है तो वो देखती है कि ये तो इब्री है, उसको भी मालूम चलता है कि ये तो इब्री है, पहरावे से, पहरावा बताता है। अगर वो बिना पहरावे को होता तो उसको नहीं मालूम लगता था कि ये बच्चा कैसा है, लेकिन उसको मालूम लग गया। और साथ में एक निशान ये भी था कि सुन्नत भी चलती थी वहां पर। 8 दिन के बाद बच्चे की सुन्नत की जाती, तो उसी दिन उसका नाम रखा जाता था। लेकिन मूसा का उसमें कोई जिक्र नहीं है कि 3 महीने में नाम रखा गया या नहीं रखा गया, लेकिन इसका नाम वो मिस्र की जो फिरौन की बेटी है वो रख रही है। क्यों? क्योंकि उसको जल में से मिला, और इसीलिए उसका क्या नाम रखती है वो? मूसा। और हम किसकी बात कर रहे हैं? जल की, पानी, आग और पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं। और प्रभु जो आग है उससे मिलना हमारा एक दिन जरूरी है। और जिस दिन आप प्रभु से मिल जाते हो तो आपको मालूम लग जाता है कि मेरा परमेश्वर जो है वो ही सच्चा खुदा है, वो ही जिंदा खुदा है। फिर आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया। जब वो मूसा से बातें कर रहा था तब भी वो जिंदा था, जब वो यीशु मसीह बनकर आया तब भी वो जिंदा था, जब वो मर के जिंदा हो गया तो फिर तो प्रमाण हो गया कि वो जिंदा है। हालेलुया। और उसको उसका वचन निकला, सुसमाचार निकला कि हमने मुर्दों में से जिंदा को देख लिया है। बहनों ने कहा जो उस कब्र पर गई थी। और यहाँ पर क्या हुआ, मूसा को पानी में से निकाला गया और उसका नाम उस फिरौन की बेटी ने क्या रखा? मूसा, जल में से निकला हुआ। तो यह है पानी की बात। और ये जो हमारा शरीर है ये किससे बना है? मिट्टी से बना है। और मिट्टी के लिए कुछ जरूरी चीजें होती हैं जो उसको उपजाऊ करती हैं, वैसे ही हमारे शरीर के लिए भी वैसे ही है। जो मिट्टी को चाहिए वो हमें चाहिए, जो मिट्टी को चाहिए वो हमें भी चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी का है। और इस शरीर में पानी है, हमारे में पानी जितना इस पृथ्वी पर पानी है ना, जितने परसेंट है उतना परसेंट पानी हमारे शरीर में भी है। और जब पानी पूरा शरीर से हमारा निकल जाता है तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, सूख जाती है, शरीर गीला पड़ जाता है, सूख जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी में से पानी निकल जाता है। और इसी प्रकार हमारा शरीर पानी है इसमें, और लहू भी है, और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिलता है हमें। हालेलुया। तब इसमें असली जान आती है, उसके बिना ये बेजान है। और यीशु मसीह के यूहन्ना गवाही देता है, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय क्या कहता है? उसमें पानी भी था और वो लहू से भी आया, वो पानी और लहू से वो आया, और पवित्र आत्मा उसकी गवाही देता है। इसलिए 3 लोगों की गवाही वहां पर मानी गई। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह पानी और लहू से आया था। तो जब उसकी पसली में नेजा मारा गया उस सलीब पर, तो पसली में से क्या निकला? पानी और लहू निकला। तो यहाँ पर क्या हुआ? मूसा को उसका क्या नाम रखा? मूसा। क्या निकला? जल में से निकला हुआ। और आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि प्रभु
से मुलाकात से पहले आप मूसा ही होते हो। कहने का भाव आप पानी वाले ही होते हो, जल वाले होते हो। जब तक आप जल में जाकर उस आग से नहीं मिलते और पवित्र आत्मा से मुलाकात नहीं करते, हालेलुया, तब तक आप जल में हो, तब तक आप एक इंसानी हो, दुनियावी हो, जब तक आपको प्रभु का नहीं पता। लेकिन प्रभु से मुलाकात के बाद हम फिर अपने नहीं रहते। बिल्कुल, ऐसा वचन कहता है। तुमको अपना आप का इनकार करना पड़ेगा। बिल्कुल, हल पर हाथ रखकर पीछे नहीं दे सकते। बिल्कुल, हालेलुया। हालेलुया। जो यीशु मसीह में दफन हो चुके हैं वो अपने नहीं रहे, वो यीशु मसीह के हो चुके हैं। कहने का भाव उस जब आग से मुलाकात हुई, जब उस पवित्र आत्मा से मुलाकात हुई, तो हमने वो पानी वाला जो बपतिस्मा था यूहन्ना का, यूहन्ना क्या करता था, किससे बात करता यूहन्ना की, यूहन्ना पानी से बपतिस्मा देता था और वो लोगों को क्या करता था, अच्छे आदमी बनाता था। ऐसा ही है ना। उसके बाद कुछ लोग आए, कुछ और आए, कुछ और आए, जो चुंगी लेते थे वो आए, जो काम करते थे वो आए। उसने बोला कि हम क्या करें सही राह के लिए। उसने बोला जितना मिलता उतना लो। उसने बोला तुम काम पर अपने ईमानदार रहो। कितना कुछ बताता है वो। क्या करता है वो, पानी से देखो लोगों को इंसान बनाता है, एक अच्छा इंसान बनाता है। लेकिन वो साथ में यह भी बात करता है कि मेरे बाद आएगा, आपको आग से भी मुलाकात करनी है और आपको पवित्र आत्मा से भी मुलाकात करनी है। हालेलुया। मैं तो तुमको एक इंसान बना रहा हूँ, मैं तो तुमको एक मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा हूँ। और यीशु मसीह के ऐसे ही कुछ चेले थे यूहन्ना वाले, जिन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया हुआ था और वो उसको क्या कहते थे, यूहन्ना का बपतिस्मा। और वैसे जब बातचीत होती है पौलुस के साथ और बाकी चेलों के साथ, तो वो कहते हैं तुमने पवित्र आत्मा नहीं पाया। कहते हमने तो बात भी नहीं सुनी उसकी। तो कहते फिर क्या करें, कहते हमने तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है। तो फिर कई जगह पर आत्मा फूका जाता है, उनको आत्मा दिया जाता है फूक कर, और कई जगह पर बपतिस्मा देकर दिया जाता है। कुछ बातें नहीं लिखी इस बाइबल में, क्योंकि अगर लिखी जाती तो पूरे जहान में बाइबल की किताबें ही होनी थी। कुछ ऐसे चमत्कार हैं यीशु मसीह के भी नहीं लिखे गए और कुछ चेले लोगों के भी नहीं लिखे गए। समझ रहे हो। तो इस जगह पर क्या है, यूहन्ना लोगों को इंसान बनाता था, अच्छे इंसान बनाता था। और अच्छे में इंसान में पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से आना था। क्योंकि उसने क्या कहा, मेरे बाद आएगा, वो क्या करेगा, आग से पवित्र आत्मा से क्या करेगा, बपतिस्मा देगा। उसने आने वाले का चिन्ह बता दिया कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बपतिस्मा लेना पड़ेगा उस आने वाले का, कि जो आग से और पवित्र आत्मा से। देखो उसने खुद नहीं दिया, लेकिन लोगों को सलाह दी कि मेरे नाम से बपतिस्मा देना है। पवित्र आत्मा आएगा, बताएगा, वो जो बताएगा तुमने वो करना है। पतरस के पास आया, उसको बताया और उसने वो किया। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि पेंतेकुस्त के दिन जब आग आई, हालेलुया, वो यीशु मसीह के साथ रहते थे, लेकिन तब वो उस आग की गर्माहट को महसूस नहीं कर पाए जो उसके साथ चलती फिरती थी। ऐसे ही होगा जब दुल्हन उठा ली जाएगी, तब बाकी चर्च जो चर्च में बैठकर चर्च की नहीं रहती, वो गर्माहट को महसूस करने की कोशिश करेगी, लेकिन हो नहीं पाएगी। वजह कि जब यीशु मसीह था तब महसूस नहीं किया, अब वो चला गया तो आप ठंडे पड़ गए। इसलिए प्रभु पहले सलाह देता है कि या तो ठंडा हो या तो गर्म हो, क्योंकि मैं गुनगुनों को पसंद नहीं करता। और ऐसे ही है, क्या हुआ, जब तक हम प्रभु से मुलाकात के तक हम एक इंसान रहते हैं और हमको नहीं मालूम कि प्रभु कौन है। लेकिन जब प्रभु मालूम लगता है हमें, तब फिर हम अपने नहीं रहते। फिर कहाँ रहा घमंड, कहाँ रहे घमंड वाली आंखें, कहाँ रहा वो दुष्ट दिल, कहाँ रहे वो पैर जो लोगों में फूट डालते थे। और प्रभु ने कहा मैं इन चीजों से घृणा करता हूँ, इसलिए हमें वो चीजें नहीं करनी। और बपतिस्मा लेने के बाद तो ये अनिवार्य हो जाता है कि आपको ये करनी ही नहीं है। घमंड नहीं करना, लोगों में विरोधता नहीं फैलानी, झगड़े नहीं करने, उत्पाद नहीं फैलाना, बल्कि प्रेम प्यार से जितनी बातचीत होती है आपको वो करनी है। हालेलुया। ये फर्क होता है यूहन्ना वाले बपतिस्मे में और यीशु मसीह वाले बपतिस्मे में। यूहन्ना वाला बपतिस्मा लेके आप फिर से वो इंसानों में जा सकते हो, लेकिन आपको उस आग से मिलना जरूरी है। और जब वो आग आएगी तो फिर आपको खुद ही पता लगेगा कि वो आग कैसी है। आमीन, आमीन।
हालेलुया। इसलिए चर्च में सभी लोग आने वाले चर्च यीशु मसीह के साथ नहीं जाएंगी। बिल्कुल। ऐसी बाइबल गवाही देती है कि 2 लोग चक्की पीसते होंगे, 1 ले ली जाएगी। 2 लोग खेत में होंगे, 1 ले ली जाएगा। वैसे ही 10 कुंवारियां हैं, 5 ले ली जाएंगी, 5 छोड़ दी जाएंगी। बिल्कुल। और वैसे ही चर्च है। वचन में क्या लिखा है कि एक आत्मा और एक सच्चाई से आराधना करनी है। और जो एक आत्मा एक सच्चाई में होंगे वो प्रभु से मुलाकात कर लेते हैं। आमीन, 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 बिल्कुल। और जो उसमें नहीं होते और वो कहते हैं प्रभु ने बात नहीं की। क्यों? क्योंकि प्रभु तो बात करके चला भी गया। हालेलुया। वैसे ही वो मूर्ख कुंवारी कहेगी कि हमने भी इतने गीत भजन गाए, हमने भी दुआएं प्रार्थना की, हमने भी कहना कुछ किया, लेकिन प्रभु लेके क्यों नहीं गया? दरवाजा बंद हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो एक मन एक आत्मा वाली संगति थी वो आपने छोड़ दी। बिल्कुल। उसमें आप एकत्रित नहीं रहे। और इसलिए पानी से, आग से और पवित्र आत्मा से आपका जन्म होना जरूरी है। और आपको उस रहस्य का मालूम होना जरूरी है। पानी, आग और पवित्र आत्मा। और आग जो प्रभु यीशु मसीह है, बिल्कुल, उससे मिलना जरूरी है। हालेलुया। तो क्या हुआ? यहाँ पर जो मूसा है, मूसा को रखा गया, उसका नाम क्या रखा गया? मूसा। जल में से निकला हुआ। किसने रखा? मिस्र की रानी बेटी ने, जो फिरौन की बेटी थी, उसने रखा। दुनियावी नाम रखा। पानी में से निकला, उसका वो नाम रखा। और वो 40 साल वहां पे रहा। 40 साल वहां रहा और 40 साल के बाद चला गया वो मिघान में। यहाँ पर कत्ल करके एक वो उत्पात देखता है इब्री और मिस्री के बीच में। और उसको अच्छा नहीं लगता कि मेरे भाई को कोई मार रहा है। तो उसके में विचार आता है कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, और उसको मार देता है। और वहां से वो मोस्ट वांटेड होकर, वहां पर क्रिमिनल होकर भाग जाता है मिघान में। एक राजे की उपस्थिति छोड़कर वो चले जाता है कहां पर? भेड़े चराने के लिए। और वहां पर जाता है, हम जाते हैं, वहां पर यित्रो से मिलता है। यित्रो की बेटियां आती हैं, वहां पर उससे बातचीत होती है। वो उसको अपने घर में ले जाती है और मूसा वहीं पे रहता है। उसकी बेटी से शादी होती है और वहां पर भेड़े चराने का काम करता रहता है वो। क्यों? क्योंकि वो दुनियावी मूसा है। अभी वो जल में से निकला हुआ है। अभी उसकी मुलाकात आग से नहीं हुई। हालेलुया। जब आग से होगी फिर वो जल वाला नहीं रहेगा। फिर वो आग वाले काम करेगा, ना कि जल वाले काम करेगा। हालेलुया। इसलिए आग से मुलाकात होनी आपकी जरूरी है। और जब वो बपतिस्मा होता है तो वो आग में ही मुलाकात होती है प्रभु से। वो बपतिस्मा क्या है? पानी। और पानी में जब जाते हैं, पानी में कौन है? यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह से मुलाकात होती है तो क्या मिलता है? पवित्र आत्मा का दान। पानी, आग और पवित्र आत्मा। और ये आपको चीजों को पता होना चाहिए कि पानी भी यीशु मसीह है, आग भी यीशु मसीह है, और पवित्र आत्मा भी यीशु मसीह। इसमें कंफ्यूज होने वाली पहले बताया था कि बात नहीं है, वो सीधी बात है। क्योंकि बताया था ना कि जैसे हालात होते हैं प्रभु हमारे साथ वैसा बन जाता है। उसके लिए उसको कुछ अलग नहीं करना पड़ता। अगर आपको बच्चों की जरूरत है तो वो बच्चा बनकर आ जाएगा। क्या कहा उसने? कि बच्चों को मेरे पास आने दो, है ना। अगर आपको पिता की जरूरत है तो पिता बन के, माता की जरूरत है कि माता बन के, किसी भी रिश्ते की जरूरत होगी वो आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा शुभ चिंतक है और उसको हमारी ज्यादा चिंता है हमसे। तो यहाँ पर क्या हुआ? मूसा 40 साल वहां रह रहा है। उसको टोटल 80 साल हो गए हैं। अब 40 साल मिस्र में, 40 साल मिघान में। और ये मिघान में रह रहा है खुश अपनी जिंदगी से, भेड़ चरा रहा है, खुश है। लेकिन इसको ये नहीं पता कि प्रभु मुझसे क्या चाहता है। ये सिर्फ खुश है अपनी जिंदगी से। लेकिन एक दिन आया जब ये पहाड़ पर जा रहा था और उस पहाड़ पर एक झाड़ी जल रही थी। हम निकालते 3 की 1, 3 के निकालिए। निर्गमन 3 उसकी 1 और 1 से 5 तक। हाँ जी। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिघान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। ये चरा रहा है, ये खुश है अपनी जिंदगी में। इसको बस ये है कि मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हो गए हैं, अब मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। अब मेरा मिस्र से क्या लेना देना है, अब मेरा इब्रानियों से क्या लेना देना है। अब मैं तो यहाँ पर रह रहा हूँ और मैं यहाँ पर खुश हूँ। हाँ जी। वह उन्हें जंगल की पश्चिम होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। क्या करके ले गया? परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। यहाँ पर परमेश्वर के पर्वत का नाम आया है, होरेब पर्वत, है ना। तो यह क्या हुआ आगे? और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया। किससे दर्शन दिया? आग की लो, आग में से होकर। समझ रहे हो?
पहले क्या था, वो जल में से निकला हुआ था पहले वो। अब उस जल की मुलाकात किससे हो रही है? आग से हो रही है। और जब आग से मुलाकात हुई तो उस आग में से कुछ शब्द निकला। हाँ जी। और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है और भस्म नहीं होती। उसने क्या देखा कि झाड़ी है वो जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही, जैसी की तैसी है, उसमें कोई हिलजुल नहीं है, जल रही है जबकि उसको जल जाना चाहिए, लेकिन वो जल नहीं रही, सिर्फ जल के दिख रही है मुझे लेकिन भस्म नहीं हो रही। तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा। देखो मूसा ने अपना स्टेप बढ़ा लिया है उस आग की तरफ कि मैं इस आश्चर्य कर्म को देखना चाहता हूँ। इसलिए यीशु मसीह भी कहता है कि तुमको मेरी ओर कदम बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। मैंने तुम्हारे लिए जान दे के कदम बढ़ा दिए, अब तुम्हारा स्टेप है मेरी तरफ आना। और जब तुम स्टेप बढ़ाते हो, जब तुम मेरे नाम से बपतिस्मा लेते हो, तो फिर देखो आग तुम्हारे अंदर आकर क्या क्या करती है। पवित्र आत्मा तुमसे क्या क्या करवाता है, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं है कि मैं दुआ भी कर सकता हूँ, प्रभु आपसे दुआएं कराएगा। आप फास्टिंग रखते, उपवास रखते, प्रभु आपको उपवास में रख जाएगा। आप कभी चर्च में रेगुलर नहीं जाओगे, प्रभु आपको चर्च में लाएगा, ऐसी सेवा दे देगा। आपने सोचा कि जब जिंदगी में मैंने नहीं सोचा था कि प्रभु की मैं सेवा करूंगा। ऐसे है आग से मुलाकात के बाद की बातें, पवित्र आत्मा से मिलने के बाद की बातें, क्योंकि आग से मुलाकात होनी जरूरी है। अब मूसा जल से जन्मा था, 80 साल जल में रहा, उसी से उसका नाम चला मूसा मूसा मूसा, और ये जल वाला मूसा। अब इस मूसा की मुलाकात हो रही है आग वाली झाड़ी के परमेश्वर के साथ, और झाड़ी वाले परमेश्वर ने कुछ कहा जी कि वह झाड़ी क्यों नहीं जलती। इसने कहा मैं पास जाता हूँ, देखता हूँ कि झाड़ी क्यों नहीं जलती। तब जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ चला आता है। अब यहोवा ने देखा क्या हो रहा है, वहां पर झाड़ी जल रही है, और फिर देख कौन रहा है? नहीं, यहोवा देख रहा है। यहोवा ने किसको देखा? मूसा को देखा। मूसा ने बोला बाकी आग फिर कौन है? वो यहोवा है। आग देखने में मूसा आग देख रहा है, लेकिन जब आग देख रही है मूसा को, तो वो किसका नाम आया है? यहोवा का नाम आया है। और यहोवा ने जब उसको आग के जरिए देखा, क्योंकि वो आग वाला परमेश्वर है। अजी तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा क्या आज्ञा? देखो प्रभु ने उसको 2 बार पुकारा। मूसा ने कहा क्या आज्ञा? वो भूल चुका था प्रभु की आज्ञाओं को, वो भूल चुका था उस दुख दर्द को जो उस वक्त के उसने सहे थे। अब 40 साल में वो खुश है, आनंदित है, लेकिन प्रभु उसको एक नई आज्ञा देने जा रहा है। जी उसने कहा इधर पास मत आ, इधर पास मत आ, और अपने पाँव से जुतियों को उतार दे, जुतियों को उतार दे। जी क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है, जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। वह क्या है? पवित्र भूमि, पवित्र भूमि। हालेलुया। और इस जुत्ती उतारने के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको मैं। एक जुत्ती एक जगह और उतारी गई थी, बता सकता है? ਜਦੋਂ ने बोआज ने, हाँ जी बोआज, हाँ जी बोआज, हाँ यही बात है। ठीक है, तो आपको मालूम है इस चीज का, चप्पल वहां पर भी उतारी गई थी, और वहां का करार था और यहाँ का भी करार है। बिल्कुल। हालेलुया। पुराने समय में जब चप्पल उतारते थे, वहां पर लिखा है, रूत वाली किताब में लिखा हुआ है कि इजरायलियों में ये रीति थी कि जायदाद के लिए इस रीत को किया जाता था कि चप्पल को उतारा जाता था। और चप्पल उतारने का मतलब ये था, अगर मैंने किसी का कुछ काम नहीं करना, या मैंने किसी का हक नहीं छुड़ाना, तो मैं चप्पल उतार कर अपना फर्क हो जाऊंगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने खुद अपना हक दे दिया। हक देना, पहला हक हमारा, और हमने हक छोड़ दिया। ये है जुत्ती उतारने की कथा, कि जुत्ती को क्यों उतारते हैं? कि उसने अपना हक दे दिया कि देख मैं तो चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चीज नहीं करना चाहता, कंडीशन है इसमें काफी, तो मैं ये चीज नहीं करूंगा, तो मैं इस चीज से फारग हूँ, अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात थी रूत वाले चैप्टर की, जहाँ पर वो बोआज को हक दे देता है अपना, क्योंकि पहला अधिकार उसका था छुड़ाने वाले निकट को टम्बी का, तो उसने अपना हक दे दिया। और यहाँ पर प्रभु खुद उसकी चप्पल उतरवा रहा है। समझ रहे हो धीरे धीरे क्या बात चल रही है? प्रभु आपके ऊपर खुद अधिकार जता रहा है अपना,
आमीन हालेलुया। आप क्या कहते हो मैं प्रभु के पास आया? नहीं, प्रभु आपको लेकर आया। आमीन हालेलुया हालेलुया। थैंक यू प्रभु ने आपकी जुत्ती खुद उतारी है, यस यस आपने नहीं उतारी। आप क्या कहते हैं मैंने हक दिया है? नहीं, प्रभु ने हक लिया है। आमीन 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 हालेलुया। इसलिए कहता मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती सुनती है, है और जो नहीं सुनती उसको वो धक्के से सुनाता है। आमीन 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 हालेलुया। और इसीलिए जिसको उसने सेवा देनी है दे देनी है, आमीन जितना मर्जी भाग लो। बिल्कुल और जब प्रभु ने जुत्ती उतार ली है आपके, तो आपने हक दे दिया। बिल्कुल इसीलिए बपतिस्मा का मतलब ही यही है, हक देना, अपना हक दिन दे देना। जब उस हम होदी में जाते हैं पानी वाली में, तो चप्पल उतार के उसमें जाते हैं, ये दुनियावी बात है। लेकिन उसका ये अलग मतलब है कि हम अपना हक छोड़ते हैं, क्योंकि हम में खुद छूटने की ताकत नहीं है। बिल्कुल हम अपना छुटकारा खुद नहीं करा सकते, बिल्कुल तो इसलिए हम अपना छुटकारा कराने के लिए उस होदी में जाते हैं। बिल्कुल किसके पास? छुड़ाने वाले के पास। बिल्कुल हालेलुया। और जब उस होदी में जाते हैं, उस पानी में जाते हैं, तो पानी में हम क्या करते हैं? यूहन्ना ने जो कहा था कि मैं पानी से दे रहा हूँ, बिल्कुल मेरे बाद आएगा जो आग और पवित्र पवित्र आत्मा से देगा। बिल्कुल हालेलुया। और याद करिए पेंतकुस्त के दिन को, जब 120 की जमात ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी, चेले कितने थे? 12 थे। 12 से भी 11 रह गए, लेकिन 120 कैसे हो गए नहीं पता। बिल्कुल समझ रहे हो? 120 की गिनती होगी एकदम से। बिल्कुल उसमें शायद वो सभी बीमार लाचार आ गए जिन्होंने यीशु मसीह की महिमा उस वक्त की थी, और बाद में फिर वो जुड़ गए, बिल्कुल क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि जिसको मारा है हम उस वक्त नहीं खड़े, लेकिन अब हम खड़े हैं। आमीन आमीन और वो 11 से 120 हो गए, और ऊपरी कोठरी में बैठे थे एक मन एक विश्वास के साथ। किसका इंतजार कर रहे थे? आग का। आमीन 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 हालेलुया। आग तो उनके लिए क्या थी? एक क्या कह लो उसको, आग क्या थी? सस्पेंस था कि आग भी उतरेगी। सही है लेकिन आना किसने था? पवित्र आत्मा ने आना आमीन था। आमीन आमीन और पवित्र आत्मा किस रूप में आया? आग के रूप में आया। बिल्कुल मूसा के पास किस रूप में गया? आग के रूप में गया। बिल्कुल जब आप समझ ले तो आपके किससे मुलाकात करता है? वो आग के रूप में करता है। और उस बपतिस्मा की होदी में आप अपना अधिकार छोड़ देते हो। बिल्कुल और जब आप कहते हो कि प्रभु मैं जान के कि तू मेरे लिए मरा, आप क्या करते हो? अपने अधिकार देते हो बिल्कुल कि प्रभु मैं तो नहीं कर सकता था, तूने किया। प्रभु मैं तो अपने पापों को नहीं क्षमा कर सकता, तूने किया। बिल्कुल मैं तो अपने हाथों पैरों पे कील नहीं ढकवा सकता, तूने किए। बिल्कुल मेरे मुंह पर थूका था मैं मार देता किसी को, लेकिन तूने किया। बिल्कुल। तूने किया भी और तूने सहा भी। बिल्कुल और तेरे सहने से आज हम में सहने की धीरे धीरे शक्ति आ रही है। आमीन 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 हालेलुया। और जब उस बपतिस्मा की होदी में जाकर पानी में हम इकरार करते हैं, और इकरार करने के बाद अपने आप को उस यीशु मसीह के हवाले कर देते हैं जो एक आग है, और आग में जाने के बाद जब हम ऊपर आते तो हमें पवित्र आत्मा मिलता है, तो उसके बाद हम अपने नहीं रहते। बिल्कुल ये बात 100% सच है। बिल्कुल और अगर आप आज भी कहते हो तो मैं कुछ हूँ, तो आपका ये घमंड है। अगर आप आज भी कहते हो कि मुझसे सुंदर कोई नहीं है, तो ये आपका घमंड है। बिल्कुल यीशु मसीह के बारे में लिखा है क्या? उसकी कोई सुंदरता नहीं थी, लेकिन वो सबसे सुंदर परमेश्वर है। आमीन हालेलुया। बाइबल उसके बारे में क्या कहते हैं? परमेश्वर के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, है ना? फरिश्ते क्या कहते हैं? हमने ऐसी महिमा किसी की नहीं देखी। बिल्कुल तारीफ तारीफ वो तारीफ देखने को तरसते थे बिल्कुल। कि कब वो जलाल वाला परमेश्वर कब शरीर में जाएगा। यस वो तीमुथियुस कहता है कि उसको शरीर में देखा गया। बिल्कुल फरिश्ते आनंद कर रहे हैं। और जब वो 40 दिन भूखा रहा, तो वचन कहता है कि फरिश्तों ने उसकी सेवा टहल की। आमीन हालेलुया। देखो ऐसा है परमेश्वर। और जब उसका जन्म हुआ, तो इतने फरिश्तों ने खुशी मनाई, वो चरवाहों के पास जाते हैं। आमीन आमीन और वो चरवाहों को बाइबल में लिखा है पलटने थी, लश्कर था वो। हाँ, लश्कर के लश्कर वहां पर गए खुशी मनाने, और बताया कि तुम्हारे लिए चिन्ह होगा, जाओ देखो जाके दाऊद के नगर बैतलहम में एक बच्चा चरनी में पड़ा होगा, वो लट्टा होगा चादर से, तुम्हारे लिए ये चिन्ह है। जब वो जाते देखते वो भी खुशी मनाते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में उद्धारकर्ता पैदा हो चुका था। आमीन तारीफ तारीफ वो हक छुड़ाने वाला पैदा हो चुका था। यस यस हालेलुया। और इसीलिए यूहन्ना उसकी गवाही देता है कि मेरे बाद आएगा, मैं तो मसीह नहीं हूँ हक दे छुटाने वाला, लेकिन एक आएगा, वो आपका हक छुड़ाएगा। बिल्कुल हालेलुया। वो क्या कहता है? मैं तो उसकी जुत्ती भी नहीं बांध सकता, खोल नहीं सकता, लेकिन वही है जो सबकी खुलवा लेगा जुत्तियां। आमीन 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 हालेलुया। आप अपना हक खुद दोगे,
जब आपको मालूम लगेगा कि मेरा मुक्तिदाता वो है। यस 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 और बपतिस्मा यही है कि हम अपना हक देते हैं कि प्रभु हम शरीर में आए थे लेकिन हम में से कुछ नहीं हो रहा, और हमारे में एक आत्मा है जो कहती है परमेश्वर है परमेश्वर है परमेश्वर है, लेकिन जब हमें मालूम लग गया है तो अब ये अधिकार तेरे पास है, तू ही परमेश्वर है, तू हमारा उद्धार कर, तू हमारे छुटकारा कर। और जब यीशु मसीह को हम अपने आप को सौंप देते हैं तो वो कहता है मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। आमीन। जैसे माता अपने बच्चे को संभालती है, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। यस और मूसा के बाद कहता है यहोशू को, मूसा के साथ मैं जैसे था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। बिल्कुल और वो आज भी हमें कहता है जैसे मैं उनके साथ था आज मैं तुम्हारे साथ भी। यस यस हालेलुया। आज वो ये नहीं कि एक साल में एक बार मिलेगा हमसे आके, नहीं, वो हमसे दिन भर मिलना चाहता है। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो हम में ही रहता है। बिल्कुल जब हम उसको याद करते हैं वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। यस हमारे शरीर में होते हैं ना, वेन्स होती हैं, हम कुछ करने लगते हैं, जैसे पाँव है, हमने उठना है तो एकदम से खड़े हो जाते हैं, कुछ कार्य करना तो ऐसे पकड़ लेते हैं। ये क्या है, हमारा दिमाग कंट्रोल करता है हमारे हाथों को पैरों को, चल बैठ टच कर ये कर वो कर। तो उसी प्रकार से पवित्र आत्मा अंदर है। जब वचन खोलते हो तो वो एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। जब आप वचन में कहते हो प्रभु मुझसे बातचीत कर, वो आ जाता है और आपको एक बात बता के जाता है। हालेलुया। एक क्या, वो आपको एक में से अनेक बात बता देता है। आमीन आमीन। कि परमेश्वर कौन है, ये बात कैसे है, ये बात कैसे है। हालेलुया। और यूहन्ना क्या कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता मैं पहले नहीं जानता था, मैं पहले नहीं जानता था वो कौन है, लेकिन मुझे जिसने भेजा उसने मुझे बताया कि जिसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा वो ही होगा। और जब उसने बपतिस्मा लिया यीशु मसीह ने उससे पानी में से, तो पवित्र आत्मा उस पर उतरा। उसने देखा, लोगों ने नहीं देखा जो आसपास के खड़े हुए थे, सिर्फ उसने देखा। आमीन आमीन। उसने ही कहा कि ये है जगत का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाएगा। उठा ले जाता है। मैं इसका हक नहीं दे सकता था, इसने मेरा हक दिया है। आमीन। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने सबका हक दे दिया और आपका हक उसने ले लिया, क्योंकि आप में ताकत नहीं थी। बिल्कुल। जितने मर्जी नेड़े के कुटुंबी आए हमारे, हम कर देंगे ये कर देंगे, लेकिन वो कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे। यीशु मसीह कहता है मैं दुल्हन भी बनाऊंगा, मैं इनको बेटा भी कहूंगा, मैं बेटी भी कहूंगा, इनका मैं दोस्त भी बन जाऊंगा। इतने रिश्ते बना दिए उतने हमारे साथ, क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसलिए जब मूसा बातचीत कर रहा है प्रभु से, तो प्रभु ने उसकी जुत्ती उतार दी, पहले उसका हक ही छोड़ दिया कि अब 40 साल तेरे नहीं होंगे, अगले 40 साल मेरे होंगे। हालेलुया। और उसको छोटा खुदा कह दिया। और जो जो बातचीत वो करता था मूसा फिरौन के आगे, वो यहोवा उससे करता था। अगर यहोवा उससे ना करता तो वो बातें पूरी ना होती, लेकिन यहोवा ने करी और वो बातें पूरी हुई। हालेलुया। तो क्यों, क्योंकि मूसा ने अपना हक छुड़वाया, प्रभु ने उसका हक, कि पहले तुझे मालूम तुझे कहां पे खड़ा हुआ है। इसलिए वचन में लिखा है कि जब बपतिस्मा लेते हो मन फिराते हो, पता क्यों फिराते हो, समझ रहे हो ना। जैसे भाई जी कहते थे कि ये मन ही पहली बात है, मन कैसे फिरेगा, इसीलिए तो प्रभु कहता है मन को ही फिराना है। समझ रहे बात को। तो यही पहला पड़ाव है। तो जब प्रभु ने क्या कहा, तुझे मालूम है कहां पे खड़ा है, तो हमें मालूम है जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम क्यों लेते हैं, हमें मालूम होना चाहिए। अपना अधिकार हम प्रभु को देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रभु मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा। हालेलुया। और वो यूहन्ना की बात फिर से आ रही, वो कह रहा है मैं घटूं वो बढ़े। बिल्कुल। जब उसको मालूम लगा वो है। हालेलुया। वो कहता वो बढ़ता जाए मुझ में और मैं कम होता जाऊं। इसलिए आग पानी और पवित्र आत्मा से मुलाकात उसका रहस्य, और प्रभु जो आग है उससे मिलना जरूरी है। हालेलुया। और इसीलिए बपतिस्मा लेने के बाद आपके कार्य स्टार्ट होते हैं, जो कि वचन कहता है। संगति करने में लोलीन रहना, प्रार्थना करते रहना, प्रभु भोज में शामिल होना, रोटी तोड़ना, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी चीजें चलती रहेंगी। और चर्च में बैठकर प्रभु के साथ मिलना भी जरूरी है। हालेलुया। बपतिस्मा तो प्रभु मिलता ही मिलता है, क्योंकि उसने वादा कर दिया। असली मन तो हमारा तब फिरता है जब प्रभु के साथ हम प्रभु की संगति में जाकर एक मन एक विश्वास में हो जाते हैं और प्रभु की बातों पर आमीन कहते हैं, हालेलुया कहते हैं, और प्रभु के साथ हम सहभागिता करते हैं।
और कहते हैं कि प्रभु तेरे सिवा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हमने अपना सब कुछ प्रभु को दे दिया। अब हमने हल पर हाथ रख लिया, अब मालूम है कि ये हल हमें आगे ही लेके जाएगा, तो पीछे देखने की क्या बात है फिर? तो पीछे नहीं देखना, क्योंकि वो हक प्रभु ने हमारा खुद लिया है। यूहन्ना भी कहता है ना, यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुमने प्रभु को चुना नहीं है, प्रभु ने तुमको चुना है। हालेलुया। हमारी जो चुनावट है प्रभु की ओर से हुई है। और जो प्रभु की ओर से हुई है, तो मूसा की तरह हम भी अपनी चप्पल उतार कर बपतिस्मा में जाकर, बाग से मिलकर, पवित्र आत्मा से मिलकर, अपना अधिकार प्रभु को देकर और उसकी बातों में हाँ मिलाकर प्रभु को सौंप दिया सब कुछ। आमीन आमीन। अब हमारा हम में कुछ नहीं, बिल्कुल प्रभु का सब कुछ है। यस हालेलुया। तो इसलिए ये जो बात है, हमको दुनियावी मूसा मारना पड़ेगा और आग वाले मूसा के साथ जाना पड़ेगा जिसने प्रभु से मुलाकात की। हालेलुया। और इसी प्रकार से जो प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई है बात कि एलिया और मूसा आएंगे। हालेलुया। हमसे तो बातचीत होगी प्रभु की आग और पानी से, आग पानी पवित्र आत्मा से, लेकिन उनकी वाकई है। हालेलुया। हम पुराने नियम में से यीशु मसीह बताते हैं, मूसा और एलिया क्या करेंगे? नए नियम में से ही यीशु मसीह बताएंगे। आमीन हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारे पास दोनों किताबें हैं, उनके पास एक ही किताब है, यस पुराना नियम। यस वो बताएंगे आकर ये नया नियम भी है, इसको कभी पढ़ा? इसमें यीशु मसीह ने क्या किया? लकड़ी पर लटका, देखोगे वो समझ आना। निकोदेमस समझ गया, क्योंकि निकोदेमस से बात की थी प्रभु ने कि वो क्या बात करने आया था। प्रभु ने बात करते करते क्या कहा कि मूसा ने क्या कहा था? लकड़ी पर लटका मिलेगा। और जब उसने देखा कि ये बात यीशु मसीह ने कही थी, लकड़ी पर लटका हुआ है, तो उसने उसके लिए उसकी कब्र मांगी। उसने उसकी सारी वो की चीज की क्रिया की जो करने वाली थी, लास्ट अंतिम क्रिया प्रभु के लिए, कि उसको दफनाया जाए, उसको गाड़ा जाए, क्योंकि अगले दिन सब्त का दिन था और उस दिन को काम नहीं करता। तो उसको उसके लिए सारी प्रक्रिया उसने की, क्योंकि वो सरदार था उस आराधनालय का, उस जगह का। ठीक है, तो हमारी उससे मुलाकात जरूरी है, प्रभु से, आग वाले प्रभु से। और ये नहीं कि बात होगी छोड़ दी, नहीं, बात होते रहनी चाहिए। बिल्कुल। जितनी बात होगी उतना प्रेम बढ़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। केवल प्रभु से ही नहीं, प्रभु के लोगों से भी। आमीन आमीन। हालेलुया। उतना आप में वैर भाव कम होगा, उतने झगड़े रगड़े कम होंगे, जितना प्रभु के वचनों को सुनेंगे, सीखेंगे। और क्यों? क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? अब तुम नहीं जीवित रह रहे, तुम में मैं जीवित रह रहा हूँ। जब हमने अधिकार दे दिए, तो अब हम नहीं जीवित, हमारे में परमेश्वर जीवित रह रहा है। अब हमें वो पानी नहीं है दुनियावी, अब हमें आग भी चल रही है। यस। जो पवित्र आत्मा का चिन्ह है, पवित्र आत्मा है वो हमारे अंदर, जो हमें आग से मुलाकात करा दी, जिसने अब हम उस आग को बांटते हैं। कहने का तात्पर्य कि प्रभु यीशु मसीह को बांटते हैं। बिल्कुल। अब हम अपनी गवाही नहीं देते कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, नहीं नहीं नहीं, जो है वो प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि हम अपनी गवाही दे ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो जीवित रहे ही नहीं। हमने तो हक ही दे दिया प्रभु को, और जिसको हक दे दिया अब वो अपनी बातें खुद करा रहा है। हालेलुया। इसलिए हमें अपना नाम नहीं करना, नाम करना है प्रभु का, ऊंचा करना है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से एक बातचीत यही एलिया मूसा वाली थी। एलिया किसको दर्शाता है? आग को, क्योंकि उसने आग निकाली थी आग में से, और वहां पर बाल के नबियों के सामने, जहां पर अहाब राजा था और जेजेबल उसकी औरत थी, जिसने इतना उत्पाद फैला दिया था वहां पर। और उस वक्त प्रभु की आग वहां पर आई और बताया कि सच्चा परमेश्वर कौन है, और इसीलिए प्रभु उसको भेज रहा है। वो दूसरा मूसा की बात देखी हमने कि वो जल से निकला, वो आग में जाकर मिल गया, आग से बात हुई। और इसलिए जल को दो भाग करने वाला भी मूसा ही है, जिसने अपनी लाठी लाई लाल समंदर पर और वो दो भाग हो गया। और बाइबल में लिखा है कि मूसा की बातें मानते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। और यीशु मसीह कहता मूसा ही बताएगा फिर तुमको आकर अपनी किताबों में से कि मैं किसके विषय में बात करता हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। और इसी प्रकार से एक घटना और है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो की। उसमें क्या हुआ? कहाँ गए थे वो? आग की भट्टी में, ऐसा ही है ना। लेकिन आपको मालूम उस आग में पानी आ गया था। कौन था पानी? वो यीशु मसीह। हालेलुया। बताया ना, जिस सिचुएशन में आप होगे वो उस सिचुएशन में बनकर आ जाएगा। आमीन आमीन।
वहां पर वो आग थी, 7 गुना आग बढ़ाई हुई थी, और वो पानी बनकर उतर आया। क्योंकि यीशु मसीह ने ये भी कहा है कि जीवन का जल मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। वो सब कुछ है। वो आपको भूख लगे वो रोटी बनकर आ जाएगा, आपको प्यास लगे वो पानी बनकर आ जाएगा। और जब आपने उसमें से पी लिया तो आपकी भूख प्यास मिट जाएगी। और आप फिर भी कहते हो कि यार मुझे तो वचन नहीं समझ आ रहा, फिर आपने अच्छे तरीके से प्रभु में से नहीं खाया, और आपको खाने की जरूरत है फिर प्रभु में से। हालेलुया। और इसलिए शद्रक मेशक अबेदनगो के बीच में वो जब आया तो वो क्या हुआ, भाई ब्रैनम बताते हैं कि उसके तब वहां पे क्या हुआ, क्या सिचुएशन थी। फरिश्ते ऊपर खड़े हुए थे। कितने फरिश्ते थे? उसके बाद तो पानी वाला फरिश्ता भी है परमेश्वर के पास, तो जिसने समुद्र की हदों को रोका हुआ है ना। उसके बाद आग वाला फरिश्ता भी है, वो आग को बुझा भी सकता था, सब कुछ कर सकता था। वो मिकाइल को भेज देता। कितने फरिश्ते हैं उसके पास? हम तो सिर्फ 3 या 4 के बारे में जानते हैं, तो कितने फरिश्तों की पलटन है उसके पास जिनके नाम हमें नहीं मालूम, है ना। तो जब वो उतने ऊपर फरिश्ते खड़े हुए थे, वो कह रहे थे मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। सब अपने अपनी बात बता रहे, मैं प्रभु ऐसा कर दूंगा, मैं इनको मार दूंगा, मैं आग को खत्म कर भट्टी तोड़ दूंगा। ये चल रही थी बातें, मैं ऐसा ऐसा कर दूंगा। लेकिन प्रभु कहता नहीं, मैं जाऊंगा नहीं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। कई बार प्रभु खुद भी आता है। अब्राहम के पास आया, 3 लोग आए थे ना उसके पास। अब्राहम के पास वो रुक गया, आगे दो दूत चले गए लूत के पास। जिससे प्रभु का दिल मिला है, प्रभु खुद आएगा। हालेलुया। क्योंकि उसने क्या कहा था, अगर वो बचाएंगे तो मेरा परमेश्वर, नहीं भी बचाएगा तो भी मेरा परमेश्वर। और ऐसी बात सुनकर परमेश्वर हिल गया। हालेलुया। आपकी बातें भी प्रभु को हिला सकती हैं। लोगों को मत हिलाइए बातें सुना सुना कर, प्रभु को हिलाइए। हिलाना है कि प्रभु खुद कहे कि मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है, मुझे जाना है। हालेलुया। और जब वो प्रभु आया तो वो पानी तो था ही, और साथ में जब उनको डाला गया तो आग, बाइबल बताती है कि आग में उनका कुछ नहीं झुलसा, मोजे तक नहीं झुलसे। कितना कुछ उनको डाला गया था, वो कुछ नहीं हुआ उनको। क्यों? क्योंकि प्रभु एक हवा बनकर उसके बीच में चला और आग उनको टच ही नहीं कर पाई। सही है। जब एक चक्रवात चलता है तो आसपास की चीजें उरे परे हो जाती हैं। और जब वो 3 लोग डालेंगे तो क्या कहता, कितने लोग डालेगा? 3 कहते, मैं कितने 4 को देख रहा हूँ। और चौथे की शक्ल प्रभु के, परमेश्वर के स्वरूप में है, क्योंकि परमेश्वर का स्वरूप खुद उतरा हुआ था। हालेलुया। और जब वो उतरा तो उसने बताया कि मैं कैसा परमेश्वर हूँ। फिर वो राजा भी कह रहा है कि पूरे लोगों में बता दो मेरे बाबुल के राज में कि इज़राइल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आग से मुलाकात होनी आपकी जरूरी है। पानी, आग और पवित्र आत्मा, ये कोई अलग अलग नहीं, एक ही है प्रभु यीशु मसीह। जिस चीज की आवश्यकता होगी वो वैसा ही बनकर आ जाता है। और आग से हमारी मुलाकात बहुत ही जरूरी है, और आग हम में होनी भी बहुत जरूरी है। आग का भाव पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा का प्रभु यीशु मसीह। और ये सभी चीजें मिलकर वचन की ओर लेकर जाती है। और वचन क्या कहता है कि आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, बल्कि उसके अंदर था, और वही शब्द देह धार कर आया। हालेलुया। और वो देह धार कर जब आया तो हमने उसकी देह खुद पहन ली। अब हम नहीं जीवित रह रहे, हम में वो खुद जिंदा रह रहा है। अब वो तो चला गया 2000 कुछ साल पहले, अब वो जिंदा थोड़ी है, वो हम में जिंदा है। हालेलुया। इसलिए हम उसके कार्य को कर रहे हैं। कहने का मतलब हम उसकी गवाहियों को बांट रहे हैं, उसके कार्य को कर रहे हैं। हालेलुया। तो इसलिए हमारी जब प्रभु से मुलाकात होगी तो हम आनंद से हो जाएंगे, हम खुशी से हो जाएंगे, और हम में कोई वैर भाव नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा तो प्रेम, क्योंकि हम में भी प्रेम ही है। हालेलुया। और प्रेम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और जिसमें परमेश्वर नहीं उसमें प्रेम नहीं, प्रेम नहीं परमेश्वर नहीं, क्योंकि ये सभी चीजें एक ही हैं, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो आइए आंखों को बंद करते हैं हम। और अब जब हमें मालूम ही लग गया है कि आग से हमारी मुलाकात जरूरी है, तो उसके बाद हमारा कार्य क्या होना चाहिए? क्योंकि प्रभु ने कहा है मैं आ रहा हूँ, तुम्हें अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ। और गीतकार क्या कहता है? उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उड़ जाना है। उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी
नासरी दुल्हन ने उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी दुल्हन ने उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी दुल्हन ने उड़ जाना है। खंबला के कलाम दे, खंबला के कलाम दे, मिले अंबरा तो पार उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी की दुल्हन ने उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी की दुल्हन ने उड़ जाना है। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह से मुलाकात हो ही चुकी है तो अब हमारा एक ही कार्य बचा है यहाँ पर पृथ्वी पर प्रभु का कार्य, और प्रभु का कार्य है हमको बादलों पर लेके जाने का, क्योंकि उड़ने वाले हैं वो जल्द, हम प्रभु से मिलने वाले हैं बहुत जल्द, समा हो ज्यादा नहीं है। इसलिए जितने व्यार बाब है छोड़ दीजिए, जितने झगड़े रगड़े हैं छोड़ दीजिए, प्रेम से रहिए, हर एक को प्रेम से मिलिए, और जो बातें बीत चुकी उनको छोड़ दीजिए और आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि प्रभु रुकने वाला प्रभु नहीं है, वो आगे बढ़ते रहने वाला परमेश्वर है। क्योंकि उत्पत्ति में जब उसका आत्मा मंडराता था तो वो ठहरता नहीं था, वो घूमता ही रहता था, और इसलिए हमें भी प्रभु के कामों को करते ही रहना है, क्योंकि हमारा कार्य पृथ्वी पर खत्म होने वाला है और हम प्रभु पर के साथ बहुत जल्द बादलों पर मिलने वाले हैं, क्योंकि वो आएगा और बहुत देर ना होगी। दुल्हन कहेगी आ, आत्मा कहेगा आओ, तब आ जाएगा। अब हमें सिर्फ परमेश्वर के कार्य पर विश्वास करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा संगति करने की जरूरत है, दुआओं प्रार्थनाओं में लगे रहने की जरूरत है, और एक दूसरे के लिए तरक्की मांगने की जरूरत है, एक दूसरे को विश्वास में बढ़ाने की जरूरत है, और हर एक को प्रेम में जोड़ने की जरूरत है। आमीन। तो वही आंखों को बंद करके स्वर्गीय प्रार्थना भाई लक के साथ मिलकर करते हैं। आओ सारे अखों बंद करे, सिरान चुकाइए। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही। आमीन। अब से लेकर परमेश्वर का प्यार, उसकी शक्ति, उसका फजल भरा हाथ हमारे साथ अब से लेकर हमेशा तक ऐसा ही बना रहे। आमीन।